بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ایک عام انسان کی طرح، ایک بشر کی طرح زندگی گزار کے، زندگی کے ہر معاملات میں وہ شامل رہے اور ہمیں دکھایا کہ زندگی کو ایسے گزارا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم یہ کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو یہ کر سکتے ہیں، نہیں، وہ انہوں نے مثال دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی بڑا لائک اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا تو اللہ چاہ سکتے تھے کہ ان کو ایسے ریسورسز دیتے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو وہ ریسورسز نہیں دیے۔ جیسے آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ ہر کسی کو یہ بات پتہ ہوگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے تھے، تو اور ایون کیا کہتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے اور ان کو بولا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو احد پہاڑ ہے، یہ اس کو سونا بنا دیا جائے آپ کے لیے۔ اور ایک بار یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو، طائف کے لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں لائک مسل دیا جائے، یا ان دو پہاڑوں کے درمیان میں کیا کہتے ہیں، دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ان دونوں پہاڑوں کو طائف کے ارد-گرد جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے بارے میں تھا کہ ان کو ملا دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ نہیں، ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دیں۔ اور پھر جب احد پہاڑ کے بارے میں تھا کہ اس کو سونا، آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، تو تب بھی انہوں نے اس چیز کی خواہش نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں مثال دینی تھی، انہوں نے ہمیں سکھانا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہم نے بھی، ہم جس بھی جگہ پہ ہیں نا، ہمیں سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ڈیفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم جہاں پہ بھی ہیں، لائک ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے احکامات، جتنا ہمیں علم ہے، ایٹ لیسٹ جتنا علم ہے نا، اتنا عمل کرنا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں علم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس نے عالمہ فاضلہ کی ڈگری کر لی ہے اور یہ ہم سے بہت اوپر چلی گئی ہیں۔ لیکن اگر اس انسان میں تقوی نہیں ہے، اگر اس انسان میں علم ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے، فار ایگزامپل اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ہم اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہم وہی نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم وہی نہیں کر رہے تو ہمارے لیے آپ سوچیں، کیا دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہیں دین کی اور وہ یہ سارے کام نہیں کر رہا، اور ایک انسان ہے جس کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں اور وہ یہ سارے کام کر رہا ہے اپنے علم کے مطابق، تھوڑا سا جتنا علم ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے۔ تو کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تب بھی کیا آپ یہی بولیں گے کہ ڈگریوں والے زیادہ اوپر ہیں، علم اور جو عمل والے ہیں وہ پیچھے؟ نہیں، اللہ کے نزدیک تو بڑائی کا معیار تقویٰ ہے۔ تو آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ اپنے اندر رکے رہنے کا یعنی تقویٰ کتنا اختیار کرتے ہیں؟ کسی بھی سچویشن میں، ہارڈ ٹائم ہے، ٹف ٹائم ہے، یا پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی میں کہہ رہی ہوں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دے رہی ہیں اس کے لحاظ سے؟ تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، یہی بات ہم نے جاننی ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک بار سوچیں ذرا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ویسے ہی بھیج دیا، بس اب جاؤں اور واپس چلی جاؤں۔ میں ایک ٹیچر ہوں، میں اکثر اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے ایسے ہی آپ دنیا میں آئے ہیں اور ایسے ہی چلے جانا ہے واپس۔ اور میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم سب کا مقصد ایک بڑا ہونا چاہیے، بہت مطلب ہماری خواہش ایٹ لیسٹ بڑے مقصد کی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا سے کوئی بڑا کام کر کے جائیں، لائک دنیا کو فائدہ اور آخرت کے لیے فائدہ دے کے جائیں، جو ہماری آخرت سنوار دے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتی تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں، آپ کی کوشش کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ چھوٹا-سا کام کر رہی ہیں اور اللہ نے اس کو اوپر آسمانوں میں کتنی بڑی مشہوری دی ہوئی ہے۔ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا ٹریلر آتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا مشہور ہوگا۔ آپ ڈال دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کوئی ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا وہ کتنی فیمس ہوگی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں اللہ اکبر! اتنی مشہور ہو گئی، اتنی فیمس ہو گئی، اور وہی بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ چھوٹی-سی کوشش کر رہی ہیں، آپ گھر میں صبر کر رہی ہیں، یا آپ گھر میں کسی بھی حالات میں ذکر کر رہی ہیں، یا پھر آپ سارے کام جب آپ اپنے
काम टाइम पे करने की कोशिश करती है, नहीं इस टाइम नमाज़ का टाइम हो जाता है, मैं इससे पहले-पहले मेरी कोशिश है, चाहे बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखती हैं, नहीं, नहीं मैं नमाज़ से पहले-पहले एट लीस्ट नमाज़ से पहले-पहले काम कर दूँ, या अपने बच्चे को नमाज़ से पहले-पहले सुला दूँ, ताकि मेरी नमाज़ ना ज़ाया जाए। या आप इस तरह की कोई भी छोटी कोशिश करती हैं, आपके हस्बैंड के आने का टाइम है और आप कोशिश करती हैं मैं जल्दी-जल्दी अपने काम खत्म करूँ ताकि अल्लाह के लिए अपने हस्बैंड को खुश कर सकूँ। या फिर आप किसी भी तरीके की कोशिश करती हैं, किसी दूसरे को खुशी देने की कोशिश करती हैं। अब अल्लाह को पता है कि अल्लाह उसको उस छोटी-सी कोशिश को आसमानों पे कितनी बड़ी वैल्यू देते हैं। और जब आप जाएँ तो आप देखें कि अल्लाह अकबर, मेरी ये छोटी-सी कोशिश इतनी फेमस हो गई आसमानों पे। असल पॉपुलैरिटी तो आसमानों पे है। असल मशहूरी तो आसमानों पे है, दुनिया पे हम जितने मर्ज़ी लाइक्स बना लें, हम जितने मर्ज़ी फॉलोवर्स ले लें, लेकिन वो जो मशहूरी आसमानों पे है ना, वो हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला कितनी उसको कितना खुश होके उसको ले रहे हैं। तो असल कोशिश हमारे दिल की है, असल कोशिश हमारी रूह की है। हमारे अंदर हम जो हम जो अच्छाई के साथ, हम जो सच्ची नीयत के साथ काम करते हैं ना, अल्लाह ताला को वो पसंद है। तो आपने अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि मेरा कोई मकसद ही नहीं है। आपसे कोई गलती हो गई या फिर आपसे गलती भी नहीं हुई। आपने जो सोचा भी नहीं था, आपने कभी ऐसा करना भी नहीं चाहा था या कुछ भी हो गया है और आप समझ रही हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं, तो नहीं ऐसा मत सोचें। आपकी बहुत कीमत है। अल्लाह ने आपको इतने फ़ख्र से बनाया है। अल्लाह ने हम सबको बहुत फ़ख्र से बनाया है। हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, सिर्फ़ अल्लाह के हैं। तो जब अल्लाह के हैं तो हम क्यों ये सोचें कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कभी हम किसी के हवाले से ये सोचे ना मैं इसका बंदा हूँ, तो फिर समझ आती है कि अच्छा मैं इसका कोई भी जैसे कोई इंजीनियर है, वो कोई गाड़ी बनाता है, तो उस वो बड़े फ़ख्र से कहता है कि देखिए मैंने ये लॉन्च की है, मैंने ये बनाया है, ये मॉडल मेरा है, ऐसे-ऐसे है। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ने हमें बनाया है, तो जब हम सोचते हैं कि अच्छा अल्लाह ने मुझे बनाया, अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है, ये चीज़ मेरी अल्लाह ने बनाई है, तो आपको समझ आएगी कि मैं तो कितनी वैल्यूएबल हूँ। मैं अपने आप में बहुत वैल्यू रखती हूँ। तो मुझे अल्लाह के लिए काम करने हैं, मुझे अल्लाह को खुश करना है। कुछ भी हो जाए, अपने अपनी जगह पे रहते हुए मुझे अल्लाह को खुश करना है। तब हमें समझ आएगी कि अच्छा इतनी वैल्यू है हमें। और आप देखें, अगर फिज़िकली वैल्यू आप चेक करना चाहें अपनी, ठीक है? अब आप देखें, आप अपनी आँख किसी को दे सकती हैं? ज़रा सोचें, किसी को अपनी आँख दे सकती हैं? या फिर अपना दिल निकाल के दे सकती हैं? आपको पता है कितनी कीमत है एक आँख की? कितनी वैल्यूएबल है आँख हमारी। और यही नहीं, किडनीज़, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स में अब तो वो सीन नहीं रहा, लेकिन जो डेड बॉडीज होती हैं उनमें से ये पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर जो डोनर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, जो भी सीन है, लेकिन आपको पता है कि उनकी कितनी कीमत है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आप में रख दी हैं। आप अरबों-खरबों में एक बंदा घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतनी वैल्यू है। क्या कहते हैं, सारे का सारा बैंक फिर रहे हैं। हम पे हमारी कितनी वैल्यू है। तो हम बहुत कीमती हैं, अल्लाह के बंदे हैं हम। अल्लाह ने हमें अशरफुल महलूकात बनाया है। इतनी मतलब फ़ज़ीलत वाली, हर हर महलूक में से फ़ज़ीलत वाली महलूक। तो उसको समझें, उस जगह पे रहते हुए समझें कि मुझे अल्लाह के लिए कुछ भी, जिस भी जगह पे मैं हूँ, जिस भी मकाम पे हूँ, मुझे जो ड्यूटी दी गई है, मुझे जो काम दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, मुझे एट लीस्ट, मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एट लीस्ट ये तो मैं अब अच्छी नीयत के साथ करूँ। हम कहते हैं ना, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने पाकिस्तान के लिए भी एक छोटी-सी कोशिश है हमारी कि हम हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करें। तो अब देखें कि अब हम कहते हैं पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ही ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। हम बड़ा सुनते हैं, हम कहते भी हैं। लेकिन मैं अक्सर कहती हूँ, कौन है पाकिस्तान? बताएँ मुझे, कौन है पाकिस्तान? मैं हूँ पाकिस्तान, आप है पाकिस्तान, हम सब हैं पाकिस्तान। किसी भी मुल्क की आइडेंटिटी हम हैं, किसी भी मुल्क का यूनिट हम हैं। हम ठीक नहीं है, तो क्या पाकिस्तान की दीवारें खराब है? हम इंसान पाकिस्तान है ना, हम सब ने मिलके पाकिस्तान, हम सब मिले हैं तो पाकिस्तान है। ऐसा तो नहीं है ना
कि ऐसा तो नहीं है ना कि हम कहें कि दीवारें पाकिस्तान है या उसकी सरहदें पाकिस्तान है। ऑफ कोर्स सरहदें पाकिस्तान है, लेकिन वो हाली सरहदें कोई मायने नहीं रखती। और उसके सिस्टम्स खराब कहाँ से हुए हैं? हम इंसानों ने किए हैं खराब। हम अपनी जगह पे रह के सोचे ना, अगर हम पीछे मैं चली जाऊँ, मैं अपने आप को भी इस चीज़ में शामिल करूँगी कि काफ़ी अर्सा पहले पीछे हम चले जाएँ तो हम कितना समझते थे। लेकिन मैं सीरियस बताती हूँ कि मुझे शुरू से पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। मैं अपने मुल्क का नाम सुनती हूँ ना, लाइक आप समझे कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दीन से मोहब्बत है और हमारा दीन सिखाता है कि अपने मुल्क से भी मोहब्बत की जाए। तो लाइक कोई हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काम होता है तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। मैं कहती थी कि अल्लाह, अल्लाह ये तो दीन के नाम पे बना है ये मुल्क। तो ये भी एक कीमत है, ये भी एक वैल्यू है कि हम समझें कि दीन के नाम पे मुल्क बना है और अल्लाह ने हमें उस मुल्क में पैदा किया। अब इस मुल्क के लिए हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हर जगह पे सोचें। हम कहते हैं कि अच्छा मैं अकेली कर लूँगी तो क्या होगा? आपको पता है नेपोलियन का एक कॉल था, आप मुझे 100 अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त इस मीटिंग में कम से कम 56 अच्छी माएँ बैठी हैं, जो ये सुन रही हैं कि नहीं, अच्छी कौम हम माँओं से बनती है, अच्छी कौम हम बेटियों से बनती है, अच्छी कौम हम औरतों से बनती है। आप देखते हैं ना आजकल क्या होता है, मैं देखती हूँ मेरे इर्द-गिर्द लाइक मैं देखती हूँ कि हम माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चों को सुबह-सुबह उठे और बच्चों ने रोना शुरू कर लिया, मोबाइल दे दें, मोबाइल दे दें। माँ ने पकड़ा दिया, अब रो रहे हैं तो कोई बात नहीं, देख लें। और फिर जब खाना खाने का टाइम है, अब बिस्मिल्लाह नहीं बच्चे को बतानी, मोबाइल पकड़ा दिया और बच्चा मोबाइल देख रहा है और खाना खा रहा है और बच्चे को भी नहीं पता वो क्या खा रहा है और माँ को भी नहीं पता वो बच्चा जो खा रहा है, वो उसके लिए शिफ़ा है या वबा है, क्योंकि खाने पे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जा रही, अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा। तो ऐसा हो रहा है, तो मैं काफ़ी अर्सा पहले मैं इस चीज़ पे बहुत सोचती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। मैं कहती थी आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं जैसे पहले होते थे, तो कहाँ कमी आ रही है? मैं इस चीज़ पे इतना गौर करती थी, मैं कहती थी अच्छा कहाँ कमी आ रही है? अल्लाह ताला क्यों नहीं वैसे बच्चे, क्यों नहीं बच्चों मतलब छोटे-छोटे बच्चे ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं, आप हैरान हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह ये क्या हो रहा है? तो फिर जब मैंने गौर करना शुरू किया, मैंने ये चीज़ें नोट करना शुरू की, मैंने बोला नहीं, कमी यहाँ पे है। कमी उस वक़्त मैं बच्चों को उस वक़्त जब बच्चे हमारे हमारे लाइक आप कह लें हमारी कोख में होते हैं, यूँ आप कह सकते हैं। लाइक उस वक़्त वो जो 9 मंथ हैं या फिर आप ये कह लें जब बच्चे इनिशियली हमारी गोद में, वो पहली कहते हैं ना पहली दरसगाह माँ की गोद है। वो जो दरसगाह है जब उस वक़्त बच्चा नहीं सीखेगा, आज़माइश भी बनते हैं बच्चे, अल्लाह की तरफ से सम टाइम होते हैं, लेकिन आपकी तो कोशिश काउंट होगी ना। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं, अभी लड़कियाँ लाइक प्रेग्नेंट हैं और उनके 5, 6, 7th मंथ हैं और वो मज़े से बैठ के देख रही हैं ड्रामे, फ़िल्में, गाने सुन रही हैं, तो क्या उस बच्चे पे असर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको पता है कि वो जो बच्चा है, साइंस कहती है कि फ़ील करना शुरू कर देता है, वहाँ पे कमी आ रही है, उधर से स्टार्ट होता है बच्चे पे शैतान का असर होना। तो जब आप कोशिश करेंगी, आप समझेंगी, हर लिहाज़ से अपने आप को समझेंगी। इंशाल्लाह फिर मैंने बोला कि हम इस पे अलग-अलग से एक-एक सिंगल-सिंगल टॉपिक लेंगे और उस पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि एक इंसान की हैसियत से आपकी बहुत वैल्यू है, आप बहुत कीमत वाली हैं। आपकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, आपकी एक-एक हिस्से की बहुत कीमत है। तो फिर आप कैसे सोच सकती हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो ऐसे ही पैदा हो गई हूँ, पता नहीं मैं इस घर में क्यों आ गई हूँ, पता नहीं मैं वहाँ क्यों चली गई हूँ। गलतियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। आप मुश्किल में होंगी, आप परेशानियों में होंगी, आप तकलीफ़ में भी होंगी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती होंगी कोई किस-किस हालत से गुज़र रहा होगा। मैं सोच भी नहीं सकती होंगी। लेकिन अब आप आ गई हैं ना दुनिया में, अब आप इस दुनिया में आ गई हैं ना, तो क्या अब आपने ऐसे ही रोते-रोते वापस चले जाना है? हमारे पास एक डायरेक्शन है, हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास एक अल्लाह की ज़ात है। और वो ज़ात जो है ना, वो जब किसी भी हालत में जब दिलों पे सुकून उतार देती है ना, उस वक़्त दिल ना ऐसे मुतमईन होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
और मैं आपको अपना मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करती हूँ, मेरा जो हर किसी का ना अल्लाह ताला के साथ एक वो कहते हैं ना कंफर्ट ज़ोन या एक बेहतरीन जो रिलेशन किसी भी हालात में, वो ये होता है कि अपने लिहाज से हर किसी का होता है। जैसे मेरा है, मैं क्या करती हूँ, मैं जब किसी भी सिचुएशन में हूँ, मुझे कोई काम नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, लाइक एकदम से कोई दुःख है, तकलीफ है, रोना आ रहा है, तो मैं दुआ करती हूँ, मैं बहुत दुआ करती हूँ, मैं अल्लाह से कहती हूँ, मैं अल्लाह से चुपके-चुपके बातें करती हूँ, मैं बातें करना शुरू कर देती हूँ, अल्लाह आपको पता है, अल्लाह आप जानते हैं, अल्लाह आप मेरे दिल की हालत जानते हैं, अल्लाह आपको पता है और मुझे यकीन होता है कि मेरे दिल